So now today's topic is pricing of services. Pricing of services, like in the services sector, how can we decide the price and what is the role of the pricing in the services? So pricing is one of the four elements of the marketing mix along with the product, price and promotion. Pricing strategy is important for companies who wish to achieve success by finding the price point where they can maximize their sales and the profits. So company may use the variety of the pricing strategies depend upon their own unique marketing goals and the objectives. So firstly, role of the pricing in services. There are the various roles of the pricing in the services. First of all, forming the expectations. As we know that the pricing and the quality is directly related. We judge the quality of the products as well as the services on the basis of the prices. Mostly we assume that the services whose prices is higher, automatically the quality would be better. So ये जो expectations है ये हमारी किससे बनती है? हमारी pricing से. Like हमारी जो quality भी हम किससे judge कर रहे हैं? Pricing से. तो हमारी expectations कौन बनाता है? हमारी pricing. Next point is making purchase decisions. इसी pricing के basis पे हम purchasing decisions लेते हैं. Like कि value for money है नहीं है, मेरे लिए affordable है या नहीं है. So these are the decisions which the customers are taking while considering the prices. Third point is evaluating service quality. सेम वही पॉइंट है कि हम सर्विस को क्वालिटी से जज कर रहे हैं प्राइसिंग के बेसिस पर. कंट्रोलिंग द डिमांड ऑल्सो, समटाइम्स द प्राइसिंग ऑल्सो कंट्रोलिंग द डिमांड. कभी कभी डिमांड इतनी ज्यादा आ जाती है तो हमें क्या करना होता है कि प्राइसिंग को थोड़े से अप कर देते हैं सो दैट जो डिमांड है उसे हम मैनेज कर सके, कंट्रोल कर सके. सो प्राइसिंग हमारी डिमांड को भी कंट्रोल करती है. Next, pricing is only marketing mix that generate the revenue. Because 3 P's में से pricing ही ऐसा P है जो कि revenue generate करता है. It is a seller's decision regarding its monetary worth to the buyer. अब pricing decide करना किसके पार्ट पर होता है? हमारे sellers के पार्ट पे. But किसको ध्यान में रखते हुए? मेरे buyers को, कि buyers कितना worth लेते हैं इस चीज से, क्या value ले रहे हैं. Pricing is a managerial task that involves establishing pricing objectives, identifying the factors governing the price, ascertaining their relevance and significance, determining the product value in monetary terms, and formulation of pricing policies and strategies, implementing them and controlling them for the best results. Up pricing इसलिए in the case of the services, deciding the prices is somewhat the crucial factor. Why is it so? Because many researchers have done, but still we are not able to calculate the pricing in the service sector. इसके अंदर हमें pricing objectives determine करने होते हैं, factors determine करने होते हैं, उसके कितनी importance है ये देखनी होती है, और क्या हम value दे रहे हैं in terms of the monetary. तो ये सारी चीजें जो भी हम स्ट्रैटेजीज प्ले कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजीज, स्किमिंग स्ट्रैटेजी. सो दीज आर दी स्ट्रैटेजीज. तो हमें कौन सी प्ले करनी है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी? नाउ नेक्स्ट इज रीजंस व्हाई कस्टमर्स लैक एक्यूरेट रेफरेंस प्राइस. अब रेफरेंस प्राइस क्या होती है? रेफरेंस प्राइस लाइक कि जो भी हमारी मेमोरी में होती है, जो हम पहले ले चुके होते हैं, वो हमारी रेफरेंस प्राइस कहलाती है. लाइक द प्राइसिंग विच वी आर इन आवर मेमोरी. लाइक पहले हमने ये प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करी थी, उसकी प्राइसिंग ये थी, तो ये हमारी एक रेफरेंस प्राइस होगी. हमने अभी प्रोडक्ट या सर्विसेज लेने से पहले हमने उसे रेफर किया, कि हमने पहले क्या इस चीज का पे किया था. इट इज नोन एज द रेफरेंस प्राइसिंग. नेक्स्ट, सो इस रेफरेंस प्राइसिंग में क्या क्या रीजंस होते हैं कि हम कस्टमर्स जो होते हैं वो एक्यूरेटली नहीं कर पाते. फर्स्ट पॉइंट इज सर्विस हेट्रोजीनिटी लिमिट्स नॉलेज. एज वी नो दैट सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस. प्रोडक्ट्स के केस में हम बोल सकते हैं कि वी कैन मेक द सेम टाइप ऑफ द प्रोडक्ट. लाइक अगर मैं पर्टिकुलर मोबाइल की बात करती हूँ तो मैं एक ही मॉडल का जो मोबाइल है, लाइक अगर मैं iPhone 10X मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो उसके सेम क्वालिटी, सेम डिजाइन की चीजें निकलेंगी.
But in case of the services, while I'm delivering the lecture today, what I'm delivering the lecture yesterday, that would be very heterogeneity रहती है इसके अंदर. तो इस वजह से हमारी जो नॉलेज है वो भी लिमिट हो जाती है अपने सर्विसेज के केस में. लाइक कल में भी हो सकता है बहुत इंप्रेसिव लेक्चर हो, या हो सकता है आज बहुत इंप्रेसिव लेक्चर हो. तो ये डिपेंड करता है हमारे सर्विस प्रोवाइडर की कैपेबिलिटी पर. तो दैट इज व्हाट कि जो सर्विसेज हैं वो हेट्रोजीनिटी होती हैं अपने नेचर में. नेक्स्ट इज प्रोवाइडर अनविलिंगनेस टू एस्टिमेट द प्राइसेस. प्रोवाइडर भी क्या होता है, अनविलिंगनेस होता है. व्हाई इज दैट सो कि हम अनविलिंगनेस बोल रहे हैं प्रोवाइडर को? क्योंकि प्रोवाइडर भी मेनली इस चीज को एक्यूरेटली जज नहीं कर पाता है. प्रोवाइडर्स आर अनविलिंगनेस. फॉर एन एग्जांपल, लीगल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. The fundamental reason being they do not know themselves what the services will involve until the process of the service delivery unfolds. ठीक है, हम अनविलिंगली करते हैं बिकॉज हमें भी नहीं पता होता है कि मे बी सर्विसेज देते देते और क्या क्या रिक्वायरमेंट हो जाए, तो हम एस्टिमेट नहीं कर सकते. मेनली सर्विस प्रोवाइडर क्या बोलते हैं कि हम लोग एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं कि सर्विसेज की प्राइसिंग क्या होगी. हाँ, एक लमसम अमाउंट हम आपको बता सकते हैं, बट जैसे जैसे हम उन चीजों पे ऐड ऑन करते जाएंगे तो प्राइसेस would be raised. Next is individual customer needs vary. Individual customers need vary because there are different types of the customers and their needs are also different. So ये जो needs है ये हमारे लिए vary करती रहती है. मे बी आज मुझे पर्टिकुलर सर्विस की रिक्वायरमेंट है, कल मुझे नहीं हो उस पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट. लाइक मेडिकल फैसिलिटी है, मुझे मेडिकल की आज रिक्वायरमेंट है, कल नहीं है. दैट इज व्हाट दी कस्टमर की नीड्स भी वेरी करती हैं. इस वजह से हम रेफरेंस प्राइसेस को नहीं कर पाते. और ये भी है कि लाइक आज अगर मैं है ना अपनी मेडिकल फैसिलिटी ले रही हूँ तो लाइक आज मैं सिर्फ एक अपनी जो मैंने टेस्ट करवाए हैं वो मैंने ओनली सिंपल ब्लड टेस्ट करवाया है या कुछ, नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और टेस्ट करवाना चाह रही हूँ तो क्योंकि मेरी नीड के अकॉर्डिंग, तो मैं उसे रेफरेंस नहीं कर पाऊंगी कि लाइक मैंने लास्ट टाइम जो टेस्ट कराया था उसकी प्राइस तो इतनी थी, आज मैंने इतना कराया तो इसकी प्राइस इतनी क्यों आ रही है. So it would be different. Prices are not visible. Prices visible नहीं होती है because backends पे भी कुछ मेरे एम्प्लॉय जो काम कर रहे होते हैं, but वो उनको मैं explain उनको मैं बता नहीं सकती हूँ कस्टमर को कि like my employees are also working behind the operations. For an example, like restaurants में जो शेफ है वो invisible रहता है, तो मैं उसकी प्राइस एड ऑन करके मैं बता नहीं सकती. तो prices are not visible. Now, what makes the pricing of services more difficult than the pricing of goods? Pricing of goods के comparatively यहाँ पर हमारी जो services में होती हैं ये different क्यों होती हैं? There are the few factors. First of all, the reference price itself. Reference price इसके कारण ही होती है mainly different हो, क्योंकि reference price जो कि मैंने आपको अभी बताया कि reference price होती है जो हम पहले memory से लिए हुए होते हैं या पहले जो हमने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, वो मेरे लिए होती है रेफरेंस प्राइसिंग. नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन. प्राइसिंग और प्राइस इज द की एलिमेंट इन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स. It is 4 P's and also enhance the marketing mix is 7 P's. This is element which earns the revenue. This is highly critical because this is the strategy which can make or mar the बिजनेस. इसी प्राइसिंग के थ्रू हम अपना बिजनेस बना भी सकते हैं और इसी प्राइसिंग के थ्रू हमारा बिजनेस जो है वो लॉस में भी जा सकता है. सो फर्म मस्ट मेक इट बोथ वेज. द प्राइस मस्ट फर्स्ट गेट प्रॉफिट्स फॉर द फर्म एंड सेकंड गिव वैल्यू टू इट्स कस्टमर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट्स को प्रॉफिट्स देखने होते हैं हमारी फर्म के लिए, सिमिलरली वैल्यू भी देनी होती है हमारे कस्टमर्स. नेक्स्ट हम लेंगे नेम्स ऑफ द सर्विस प्राइसिंग. फर्स्ट, प्राइसिंग ऑफ फॉर गुड्स इज इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, while for the services it is complicated, may be controlled by the several authorities, varies with time, place, people, etc. क्योंकि गुड्स के केस में तो हमें पता है कि लाइक पर्टिकुलर गुड्स की प्राइसिंग इतनी होगी, हम कहीं पे भी तो सोल्ड आउट करते हैं वो वेरी ज्यादा नहीं करती है, बट सर्विसेज के केस में वो वेरी करती है. आप अगर वही चीज अगर कोई एक सर्विसेज है अगर आप किसी मॉल में अवेल करते हो तो उसकी प्राइसिंग डिफरेंट होती है. आप अगर वही सर्विसेज अगर कहीं आउटसाइड ऑफ द मॉल अगर अवेल कर रहे हो सेम सर्विसेज, उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी. दैट मीन्स प्लेस की प्राइसिंग एड ऑन होती है, पीपल्स की एड ऑन होती है, टाइम की एड ऑन होती है.
लाइक आपने देखा कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी प्लेस पर क्लिनिक पर डिफरेंट चार्ज करते हैं, वेयर एज जो हॉस्पिटल्स है उसमें उनकी प्राइसेस डिफरेंट होती है। टाइम के अकॉर्डिंग भी मे बी मॉर्निंग में वो कम चार्ज करते हैं, इवनिंग में वो ज्यादा चार्ज करते हैं। इसके लिए हम मेनली एग्जांपल ले सकते हैं मूवी थिएटर्स का, कि मॉर्निंग के शो टाइम्स डिफरेंट होते हैं, प्राइसिंग उनकी डिफरेंट होती है, वेयर एज इवनिंग में जो प्राइसिंग होती है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व हैं। Next, for goods, the price has a single name price. But for the services, it has the several names like allowances, expenses, fare, fees, premium, rates, token, wages, etc. So what makes services pricing different? First, no ownership of services. Second, higher ratio of the fixed cost to variable cost. Variability of both inputs and outputs. Many services are hard to evaluate. So this is the 4 points. So no ownership of the services. अब हमें पता है कि सर्विसेज के केसेस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो कॉस्ट होती है वो हम फाइनेंशियल कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं इजीली, क्योंकि बिकॉज सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर। Whereas in case of the manufacturing, we can calculate it, we can add the labor cost, the material cost, the machine time, the storage, the shipping cost, etc. But in case of the services, we cannot add these. Next, higher ratio of fixed cost to variable cost. अब फिक्स्ड कॉस्ट का रेशियो जो होता है सर्विसेज में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वेरिएबल कॉस्ट, लाइक hospitals, hotel, universities, fleet of vehicles like airline, bus company, trucking company, they are all the service industry, they are come under the service industries. But इनकी जो फिजिकल फैसिलिटी है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो बिल्डिंग की कॉस्ट आ रही है वो फिक्स्ड होती है, एंड व्हाट सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग, देयर कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, वो उनकी वेरिएबल करती रहती है, वेरी करती रहती है। Second point है, or a network dependent on a company owned infrastructure, example telecommunication company or the internet provider, a railroad or a gas pipeline. Like अगर हम बात कर रहे हैं, सेकंड एग्जांपल भी यही दिया है कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उन्हें अपने टावर जहां जहां लगाना है, इट इनकर्ड सम कॉस्ट, लाइक रेल रोड, जहां पर भी मेरे प्लेटफॉर्म बिछेगा, जहाँ पे भी मेरी लाइन्स होंगी, वहां पर मेरी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, बट सर्विसेज में वेरी। Next is variability of both inputs and outputs. In services, we cannot measure the input and the output because they all are variable in nature. They are not constant. Like input हमारा variable रहता है तो output भी हमारे पास variability में आता है. Like suppose आज मेरे पास मैंने input दिया, मैंने lecture दिया, इस लेक्चर में सपोज आई एक्सपेक्ट कि मेरे स्टूडेंट्स को सब समझ में आ जाएगा, मेरी आज की यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरा आउटपुट होना चाहिए था, बट इट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, लाइक कितने स्टूडेंट्स ने कितनी क्वेरीज करी हैं, ठीक है, क्वेरीज के भी अकॉर्डिंग कितने स्टूडेंट्स ने अटेंड किया, कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया इन सब चीजों में, सो दैट इज द इनपुट, तो आउटपुट मेरा वेरी कर जाएगा। सो ये दोनों चीजें वेरिएबल होती हैं। Their similar cost of service may not cost the same to produce or may they be equal value to all customers. मेरी similar units भी, like कल भी मैंने lecture दिया, आज मैंने lecture दिया, the service provider is the same, but my output will vary. Next, many services are hard to evaluate. कुछ services को तो हम evaluate ही नहीं कर सकते हैं, because services are the performances and they are intangible. So जो हमारे जो बैकएंड पे जो वर्कर्स हैं उनकी सर्विसेज इवैल्यूएट करना ये कुछ कस्टमर्स के लिए हार्डर होता है, बिकॉज हमें पता ही नहीं होता है कि लाइक इसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है। So these are the 4 factors. Next, key characteristics of pricing in services. क्या क्या है? Price is a measure of quality in service or non-monetary cost and the prices. So first अगर हम लेते हैं, prices is the measure of quality in services. हम services में कैसे लेते हैं प्राइसिंग को? उसकी क्वालिटी से। क्या क्वालिटी वो हमें दे रहा है, क्या ऐसी क्वालिटी दे रहा है जिससे कि हम सेटिस्फाइड है ना? तो इन सब चीजों पे हमारा डिपेंड करेगा। Custom for price indicators, customer prefer some cues like the service reputation,
level of the advertisements to access the quality. So these are the factors that influence the quality in the services. So prices has the direct relationship with the quality. It is the most prominent where the levels of the same type of services are differentiated by price, like air tickets, rail tickets. यहाँ पर same services दे रहे हैं, but vary कर जाती हैं हमारी ये services, air tickets में भी और rail tickets में भी. It is the least prominent between two service providers offering the same type of the services in different type at different places for different people with different content. ठीक है कि हमारी जो सर्विसेज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर जो ऑफर कर रहा है, वो सेम सर्विसेज डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट पीपल्स के साथ कर रहा है विद डिफरेंट कंटेंट्स. तो भी हमारी जो प्राइसिंग है वो वेरी करती है. सर्विस प्रोवाइडर इज द सेम. Now next, thus on the whole, the customers take the prices as the thumb rule or yardstick for quality and content of the services. Price is an attraction and repellent simultaneously, because in the absence of anything visible or invisible, the price is the only indicator. So pricing must be done properly. The price should be done properly because it is the indicator in the eyes of the customers. Now next would be customers will trade money for the other service cost also, the role of non-monetary cost. अब non-monetary cost भी आती है. Non-monetary cost में like हम ले सकते हैं first इसमें time दे रखा है, effort और psychic cost. Time क्यों है? Because time cost, most services require direct participation of the customers and thus the real time also. हमारी search cost लगती है, time cost लगती है, ठीक है, क्योंकि हमने आप किसी के पर अगर वेट किया है, क्लिनिक पे जाके हमने वेट किया, तो हमारी टाइम कॉस्ट लगती है. एफर्ट कॉस्ट, उस सर्विसेज को अवेल करने तक जो भी हमने एफर्ट्स लगाए हैं, इट इज नोन एज द एफर्ट कॉस्ट. नेक्स्ट इज साइकिक कॉस्ट, दैट मींस फियर ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग the particular services, fear of rejection. For an example, like बैंक में हम लोन अप्लाई करते हैं तो हमारे वहाँ पे फियर होता है कि हमारा जो लोन पास होगा या नहीं होगा. Sometimes there must be a fear of results, like in the medical services, like किसी की सर्जरी है तो सर्जरी करने में भी मुझे एक फियर है कि मेरी सर्जरी सही से होगी या नहीं होगी. इट्स व्हाट द फियर रिजल्ट्स. तो ये सब एक कॉस्ट इनकर करती हैं आपस में. नेक्स्ट, नॉन मॉनेटरी कॉस्ट एंड द प्राइसेस, टाइम कॉस्ट, सर्च कॉस्ट, कन्वीनियंस कॉस्ट एंड द साइकोलॉजिकल कॉस्ट. ये सब हमारी एक कॉस्ट है. नेक्स्ट, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. हमारा मेन जो प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट तो होता है हमारा सर्वाइवल, कि हम सर्वाइव कर पाए, इसलिए हमें वो प्राइसिंग डिसाइड करनी होती है. प्रेजेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट ऑब्वियस प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए. प्रेजेंट रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, रेवेन्यू दैट मींस जितनी भी सेल हुई है उससे जितना भी कलेक्शन हुआ है, इट इज नोन एज द रेवेन्यू. तो हमें अपनी जो कलेक्शन है थ्रू द सेल्स वो भी इंक्रीज करनी है. नेक्स्ट इज प्रेस्टीज. प्रेस्टीज का भी एक पॉइंट है प्राइसिंग. हम लोग प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट समझते हैं. टाटा नैनो इसलिए फेल हो गई थी प्राइसिंग के बेसिस पर. उसे हमने ले लिया था कि लो क्वालिटी ले ली थी या फिर लो स्टेटस का ले लिया था. तो हमारी प्रेस्टीज की भी बात होती है प्राइसिंग में. प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप. प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप दैट मीन्स हम क्वालिटी पर लीड कर रहे हैं. हमारी सर्विसेज है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उसलिए हम क्या है, लीडर हैं इसमें. सोसाइटी ओरिएंटेड प्राइसिंग, दैट मीन्स कि हम प्राइसिंग रख रहे हैं अपनी सोसाइटी को देखते हुए कि हमारी सोसाइटी में इस चीज की जरूरत है, तो अब हम क्या रख रहे हैं, उसको सोसाइटी बेस्ड प्राइसिंग रख रहे हैं. नेक्स्ट इज सर्विस क्वालिटी लीडरशिप. सर्विस क्वालिटी लीडरशिप वही सेम एज फॉर द प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप. कि अब हमने क्या किया है, हमारी जो सर्विसेज है उसकी जो सर्विसेज है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हम लोग दे रहे हैं, इस वजह से हम वहाँ पे लीडरशिप है. ऑपरेशन ओरिएंटेड, लाइक जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं, लाइक टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, तो जो भी जो खाना बन रहा है वहाँ पर हाइजीन फैक्टर्स को लिया जा रहा है. जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो बहुत हाइजीनिक वे में हो रहे हैं. तो दैट इज द ऑपरेशन ओरिएंटेड प्राइसिंग, कि हमारी जो ऑपरेशंस हैं वही देख के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस बेसिस पे हमने अपनी प्राइसिंग रखी है. पैट्रोनेज ओरिएंटेड, दैट मीन्स कि ओवरऑल जो फेमस चीजें हैं, लाइक कस्टमर्स की के साथ हमारी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स कैसी बनानी है हमें,
कैसे उनको लॉयल बनाना, ये हमारा पैट्रोनेज कहलाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी प्राइसिंग रखी है। So these are the explanation of the previous slides points like survival, profit maximization, sales volume, revenue, society oriented, service quality, leadership, operation oriented और the patronage oriented. Next, patronage and user base related objectives में first point है build demand. अब हमें अपनी demand को build करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी डिमांड को मैक्सिमाइज करना होगा। और हम मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? जब हमारी कैपेसिटी एक कॉन्स्टेंट नहीं हो। मैं डिमांड तो इंक्रीज कर दूं, मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं है इतनी कि मैं उसको सप्लाई कर सकूं, तो कोई मतलब नहीं है। तो हमारा मेन एक्सेप्शन क्या रहेगा? कैपेसिटी इज नॉट अ कॉन्स्टेंट। कैपेसिटी की हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, इसलिए हम डिमांड इंक्रीज करते हैं। अचीव फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, स्पेशली व्हेन high capacity utilization adds to the value created for all customers. Like अगर थिएटर में ऑप्टिमल या फुल कैपेसिटी लाइक 60 सीट्स की है, तो वो 60 के 60 सीट्स जब फुल हो जाएंगी, हाउस फुल होगा, तब मैं बोलूंगी कि मेरी फुल कैपेसिटी यूटिलाइज हुई है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुआ है। तो इस केस में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सेम रहेगा। बिल्ड अ यूजर बेस, अब हमें यूजर बेस को ही बढ़ाना है अपने। तो ये कैसे बढ़ाएंगे? गिव देम सम ट्रायल, एडॉप्शन ऑफ द सर्विसेज। आप लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर्स में भी ट्रायल वर्जन देते हैं, लाइक 30 days फ्री ट्रायल, आफ्टरवर्ड्स यू विल बी चार्ज फॉर 255 रुपीज पर मंथ। ठीक है, लाइक अगर आप कुछ डाउनलोड भी कर रहे हो या फिर पीडीएफ से कन्वर्जन भी कर रहे हो, पीपीटीज में पीपीटी टू पीडीएफ, तो उसमें भी आपको फ्री ट्रायल देता है। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज हमें यूजर बेस बढ़ाना है, उन्हें एडॉप्ट कराना है हमारी सर्विसेज के साथ। नेक्स्ट, बिल्ड मार्केट शेयर or a larger user base, especially if there are significant economies of scale that can lead to a competitive cost advantage if development or fixed costs are the high. अब हमें मार्केट शेयर भी बढ़ाना है। मार्केट शेयर में कैसे बढ़ाएंगे? जब हमारे कॉम्पिटिटिव कॉस्ट का हम एडवांटेज ले सके, तो हमारा मार्केट शेयर क्या होगा? बिल्डअप हो जाएगा। Now factors considered in service pricing: first, cost involved in providing service and break-even analysis. First, fixed cost, variable cost और overhead cost. हमारी फिक्स्ड कॉस्ट बनाती है प्राइसिंग, हमारी वेरिएबल कॉस्ट हमारी ओवरहेड कॉस्ट, जो कि जो भी मटेरियल से बनती है ओवरहेड कॉस्ट। कॉम्पिटिटर प्राइसिंग में मी टू प्राइसिंग, कॉमन इन प्राइस सेंसिटिव मार्केट और बैंक रेट्स और एयरलाइंस इसके एग्जाम्पल है। लाइक आप देखोगे एयरलाइंस में भी, जैसे एयरलाइंस के सेम अब क्या है, कंपटीशन बढ़ गया है एयरलाइंस में, तो सबकी प्राइसिंग मी टू प्राइसिंग है। लाइक जो मेरे कॉम्पिटिटर की प्राइस होगी, मैं भी सेम वही प्राइस होगी। उन्होंने अप किया, मैंने अप किया, उन्होंने डाउन किया तो मैंने भी डाउन किया। इज व्हाट द मी टू प्राइसिंग। प्राइस सेंसिटिव मार्केट भी हमारे लिए कॉमन है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं। Now, demand levels and elasticity. First, economic situations and patterns in consumer expenditure. हम economic situation देखेंगे और उनका पैटर्न देखेंगे कि उनका एक्सपेंडिचर पैटर्न कैसा है। लाइक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना एक्सपेंड करते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल स्टेजेस ऑफ द सर्विसेज, सर्विसेज की भी लाइफ साइकिल स्टेज, जैसे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल स्टेज होती है लाइक इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। यही सेम सर्विसेज के केस में भी होती है। सीजनल फ्लक्चुएशंस मस्ट बी देयर, कि लाइक आज विंटर्स में आप लोग देखेंगे तो किसी किसी सर्विसेज की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, किसी किसी की समर्स में होती है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द सीजन्स ऑल्सो। बिजियर टाइम्स ऑफ द डे, कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो इस वजह से भी डिमांड नहीं आती है। एक्सटेंड ऑफ प्रमोशनल एंड मार्केटिंग एफर्ट्स, हमें प्रमोशन और मार्केटिंग एफर्ट्स ही करने होते हैं। लेवल ऑफ सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ द सर्विसेज, सब्स्टिट्यूट सर्विसेज को किस तरह से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये भी हमें लेवल चेक करना है। नेक्स्ट, अब देखिए इसके अंदर इन लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया है ओला का। इन्होंने दिया है 5 राइड्स एट द रेट ₹50 फ्लैट फेयर ऑब्लिक राइड। अब हम यूजर बेस बढ़ा रहे हैं, अपना डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? हमने बोला है कि 149 का आप मेरा प्लान लो, जिसमें 5 राइड्स जो है आपको, उसमें 5 राइड्स में आपको ₹50 ऑफ देंगे हम। ठीक है, पूरा मंथली ये प्लान है जिसमें 5 राइड्स
फ्लैट फेयर हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। 10 राइड्स एट द रेट ₹50 फ्लैट फेयर, ठीक है, पर राइड। तो ये कितने में मंथली प्लान है? 199। तो हमें ये क्या है, ये प्रमोशन का एक तरीका है। नेक्स्ट, सीजनल रेट, क्रिब रेट और एक्स्ट्रा बैड रेट। सो सीजनल रेट क्या है? सीजन एंड रिजॉर्ट hotel which usually have fluctuating demand change their rate usually as per the seasonally and offer different rates for in season और off season। हम अगर कहीं जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पे तो उसमें इन सीजन और ऑफ सीजन होता है। ऑफ सीजन में उनकी प्राइसेस कम होती है एज कंपेयर इन सीजन में उनकी प्राइसेस ज्यादा होती है। तो क्रिब रेट क्या है? अ स्पेशल रेट एप्लीकेबल टू चिल्ड्रन बिलो 12 years of age and accompanying with their पेरेंट्स। जो 12 साल से कम उनके जो बच्चे हैं उनके लिए हम कम प्राइसेस रख रहे हैं। लाइक दी रेलवेज ऑल्सो। एक्स्ट्रा बेड भी लगा सकते हैं हम, एक एक्स्ट्रा बेड की भी हम लोग देते हैं, जनरली 1/4 ऑफ द पब्लिश्ड रूम रेट। एक्स्ट्रा बेड आप लगा सकते हो, 1/4 हम उसका चार्ज कर लेंगे। दैट इज व्हाट दी यूजर बेस हमें इंक्रीज करना है, डिमांड इंक्रीज करने की बस कैपेसिटी है मेरे पास। तो जब मेरे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नहीं है तो मैं ये सब चीजें इंक्रीज कर सकती हूँ। रेगुलेटरी फैक्टर्स में first, industry trends, influences of price on some other elements of the marketing mix or the positioning। industry trends क्या चल रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं, लाइक जो रेलवेज है वहां पे इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है, एयरलाइंस में इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है, हमें ये भी देखना है। और हमारे जो अनदर जो एलिमेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम द प्राइसिंग, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे इस प्राइसिंग फैक्टर को। पोजीशनिंग ऑफ कोर्स इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पोजीशनिंग में भी हमारी प्राइसिंग इंक्लूड हो रही है। नेक्स्ट, अप्रोचेस ऑफ प्राइसिंग सर्विसेज क्या है? 3 अप्रोचेस हैं, कॉस्ट, डिमांड एंड कॉम्पिटिशन। सो कॉस्ट को हम लेते हैं कि जो हमारी टोटल जो कॉस्ट लगती है उस सर्विसेज को बनाने में, लाइक मेरी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, तो मेरी टोटल कॉस्ट आती है। मेरी डिमांड कितनी आ रही है मार्केट से, मेरे कॉम्पिटिटर्स ने क्या मतलब प्राइसिंग सेट कर रखी है, तो इन बेसिस पर मैं अपनी प्राइसिंग सेट करती हूँ। सो देयर आर द 3 pillars इन द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी: कॉस्ट, कॉम्पिटिशन एंड वैल्यू टू कस्टमर्स। सो द कॉस्ट है वो मेरी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तीनों चीजें इंक्लूड करेगी। सो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या हो गई? मेरी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, प्लस मेरा इसके अंदर मार्कअप भी है, मेरा प्रॉफिट भी इसके अंदर इंक्लूड है। इट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। फी फॉर सर्विसेज, दैट मीन्स जितनी मैं नंबर ऑफ आवर्स मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ उतने आवर्स के अकॉर्डिंग मैं अपनी फी चार्ज कर रही हूँ। द रिकॉर्ड कीपिंग कांट बी डन एक्यूरेटली। अब इसके अंदर ड्रॉबैक क्या है कि हम रिकॉर्ड कीपिंग नहीं रख सकते हैं। फॉर द सेम रिजल्ट एन एक्सपीरियंस्ड एंड novice may have the same fee। अब और आर्स के अकॉर्डिंग जो आपको सर्विसेज देते हैं, लाइक जब आप मॉल में जाते हैं तो मॉल में आपकी कार पार्किंग है, वैलिड पार्किंग, इसमें आप देखेंगे कि आपके आर्स के अकॉर्डिंग वो लोग चार्ज करते हैं। 1 आवर के इतने, 2 आवर्स के इतने, 3 आवर्स के इतने। तो दैट मीन्स वो अपने आर्स के अकॉर्डिंगली वो अपनी सर्विसेज को चार्ज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, फॉर द सेम रिजल्ट एन एक्सपीरियंस एंड अ नोविस मे हैव द सेम फी एंड इफ नॉट देन रीसेंटमेंट टेक्स प्लेस इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स। अगर 1 आवर है, टिल 1 आवर है तो हम सेटिस्फाइड होते हैं, बट 1 आवर 10 मिनट्स हो गया है, अगर सर्विसेज मतलब 10 मिनट्स के लिए हमें वो जो 2 आवर्स की जो सर्विस पे करनी है उसमें हमें डिससेटिस्फैक्शन आता है हमारे माइंड में कि लाइक ओनली फॉर 10 मिनट्स वी हैव टू पे फॉर द 2 आवर्स। So that is what the fee for the charges इनका एक drawback। Examples and problems: cost plus pricing और fee for services। cost plus pricing में हमने cost, fixed cost, variable cost ऐड कर ली प्लस profit ऐड कर लिया था। fee for services में हमने जितनी देर हमारी सर्विसेज दी है उसके अकॉर्डिंगली हम चार्ज करते हैं। प्रॉब्लम्स क्या आएंगे इसके अंदर? cost difficult to trace, cost को trace हम नहीं कर सकते easily। labor more difficult to price than materials। मटेरियल्स का तो हमें पता होता है कि लाइक इतने मटेरियल का चार्ज इतना है, बट लेबर का चार्जिंग देना दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट। कॉस्ट में नॉट इक्वल दी वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये सोचा कि 10 मिनट्स की मैं एक्स्ट्रा पे कर रही हूँ, तो दैट मीन्स उसकी वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है, जो मैंने कॉस्ट पे की उसकी वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है, जबकि कस्टमर्स क्या चाहता है? वैल्यू फॉर मनी। नाउ कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग।
competition based pricing. This approach is based on using the competitor's price as the point of the reference. It means हम competitor की pricing को reference pricing से लेके हम अपनी pricing set कर रहे हैं. Like fitness clubs, driving classes, computer classes, etc. It is used in two situations: when services are standard across the providers, or in oligopolies where there are few large service providers, जहाँ पे कि हमारे service providers कम हो, या फिर हमारे पास एक standard जो होता है services को एक standard fix है. Next, price signaling. Price signaling, that means competitors ने signal दे रखा है कि like for this much of kilometers I am charging this cost from the passengers. तो एयरलाइंस ने एक चीज फिक्स्ड कर रखी है, तो सिग्नल दिया है, तो मेरी जो सपोज अगर नई एयरलाइंस आएगी तो वो भी इसके अकॉर्डिंग अपनी प्राइस चेंज करेगी. ऑल्दो वेरिएबल कॉस्ट विल बी देयर, like what facilities, extra facilities they are providing to their passengers. In this type of the pricing strategy, the charges offered are the ones that are prevalent in the market for the same type of services. जैसे कार हायर्स है, टूरिस्ट बस सर्विसेज है, इन लोगों ने एक सिग्नलिंग प्राइसेस दे रखी कि लाइक इतनी इतनी प्राइसेस लगती हैं. अब कुछ प्राइसेस वेरी कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर्स फैसिलिटी. गोइंग रेट प्राइसिंग जो मार्केट में भी चल रही है, प्रिवलेंट प्राइसेस जो अभी चल रही है मार्केट में, दैट इज गोइंग रेट प्राइसिंग. नाउ प्राइसिंग बिलो द कंपटीशन. अब हम अगर कॉस्ट एडवांटेज लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, और मैं अगर अफोर्ड कर सकती हूँ तो कॉम्पिटिटर से बिलो प्राइस रखूंगी, या फिर अगर मैं प्रीमियम सर्विसेज दे रही तो अपने में कॉम्पिटिटर से अबव प्राइस भी रख सकती हूँ. Next is sealed bid pricing. Sealed bid pricing, for an example, like अगर आप लोगों ने देखा होगा जो गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स रखे, लाइक ब्रिज बिल्डिंग का एक कोई प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है, ब्रिज बिल्ड करना है, तो उसके लिए जो भी कॉस्ट आ रही है वहां पे हम कॉन्ट्रैक्टर से एक अपने अपने कोटेशंस ले लेते हैं और उसकी बिडिंग करते हैं. जिसने भी कम कोट किया होगा गवर्नमेंट विल सिलेक्ट दैट प्रोजेक्ट, बिकॉज उससे सोशल कॉस्ट बेनिफिट भी देखना है. सो दिस इज व्हाट द सील्ड बिड प्राइसिंग. हम सील्ड बिड प्राइसिंग कर रहे हैं. Problems and examples for this: small firms may charge too little for the viable. कभी कभी हम जो फर्म्स होती हैं बहुत ज्यादा चार्ज करती हैं. heterogeneity of services limits the comparability, as we know that the services are heterogeneous in nature. Similarly, अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज भी देखते हैं तो कुछ डॉक्टर्स की फीस कम होती है, कुछ डॉक्टर्स की ज्यादा होती है, इसकी वजह से हम कंपेयर भी नहीं कर पाते हैं. प्राइसेस may not reflect customer values. प्राइसेस जो है कस्टमर की वैल्यू, उनके बेनिफिट्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है. लाइक प्राइस सिग्नलिंग में सेम था, गोइंग रेट में यही है कि लाइक जो प्राइसेस चल रही हैं हम उसी प्राइसेस को लेके चल रहे हैं, तो इसमें कस्टमर का बेनिफिट नहीं समझ में आता है. नॉट डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, लाइक जो डिमांड आ रही है हम उसके बेसिस पे प्राइसिंग रखते हैं. ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, बट डिमांड बेस्ड प्राइसिंग में क्या है कि जितनी भी मेरे पास डिमांड आ रही है, लाइक कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग प्राइस डिसाइड कर रहे हैं. दैट इज व्हाट द डिमांड बेस्ड प्राइसिंग. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, this type of pricing is fixed, keeping in mind what the customers are likely to pay for the perceived value offered by the services. पर्टिकुलर चीज के लिए मेरे कस्टमर्स कितने विलिंगली है कि इतनी वो प्राइस पे कर सकते हैं, तो वो डिमांड बेसिस, जिसकी डिमांड आएगी हम उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग कर देंगे. नेक्स्ट इज for determination of demand based pricing, non monetary cost also have been considered, as these contribute to the perception of the value. Non monetary, as I told you, like time cost, effort cost, convenience cost, this is what is the non monetary cost. So what the traffic can bear pricing, इसमें first है कि मेरा जो traffic है, जो मेरे पास customers को traffic आ रहा है वो कितनी bear कर सकता है price. Skimming based pricing, in this skimming based pricing हम हमेशा pricing higher रखते हैं. कुछ सर्विसेज ऐसी है, प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर हम स्किमिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, लाइक वी इंट्रोड्यूस आवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट द हायर रेट. ठीक है, लाइक फॉर एन एग्जांपल जो आईफोन के जो मोबाइल फोन्स आते हैं ये स्किमिंग स्ट्रेटेजी प्ले करते हैं, हायर प्राइस पे इंट्रोड्यूस होते हैं. पेनिट्रेशन बेस्ड प्राइसिंग, पेनिट्रेशन दैट मीन्स कि हमने अपनी प्राइसेस लो रख रखी है, हम लोअर प्राइसिंग से स्टार्ट कर रहे हैं सो दैट वी कैन अट्रैक्ट द कस्टमर्स.
और कस्टमर डेफिनेशन से वैल्यू की, जो कस्टमर्स देते हैं वैल्यू को। फर्स्ट वैल्यू इज लो प्राइस। हम ये सोच के चलते हैं कि अगर हमें वैल्यू मिल रही तो लो प्राइस में मिलनी चाहिए, लाइक डिस्काउंट्स हम ऑफर कर दें, ऑड प्राइसिंग हम दे दें, तो कस्टमर्स को लगता है कि हमें वैल्यू फॉर द प्राइस मिल रही है। सिंक्रो प्राइसिंग, लाइक प्लेस डिफरेंशियल, टाइम डिफरेंशियल, क्वांटिटी डिफरेंशियल, प्लेस के अकॉर्डिंग हम अपनी प्राइसिंग को कम ज्यादा कर लेते हैं, टाइम के अकॉर्डिंगली, लाइक जो आपको बताया था थिएटर में हम प्राइस डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्वांटिटी हमने थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दी और अपनी प्राइस को डिफरेंशिएट कर दिया है। और पेनिट्रेशन तो है ही हमारी लो प्राइस पर, जब अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लो प्राइसिंग पे कर रहे हैं। पेनिट्रेशन डिजाइन किया जाता है टू कैप्चर द मार्केट शेयर by entering the market with the low price that should be relative to the competitors pricing to attract the buyers. It is the penetration. Whereas this skimming is what? It is we introduce the product at the higher rate to gain the maximum revenue before the other competitors in the market. That is what the price skimming. So हम value is low pricing में discounting देखेंगे, odd pricing अगर 99 दे रखा है although it's 100 but 1 रुपये कम है तो हम इसको भी ले लेते हैं कि value मिल रही है हमें, that means 2 digits में है, 3 digits में है, ठीक है। place differential, time differential, quantity and penetration. Next value is what I want in a service. value को हम कैसे ले रहे हैं कि मैं services में क्या चाहता हूँ। First, offer high quality services. New services introduced at the higher price. Prestige pricing में तो आपको बताया कि हम क्वालिटी को बहुत अच्छी दे रहे हैं, हायर क्वालिटी, तो वो प्रेस्टीज प्राइसिंग हमने रखी है। स्किमिंग में हम इंट्रोड्यूस ही हायर प्राइस पे कर रहे हैं। वैल्यू इज क्वालिटी आई गेट फॉर दैट प्राइस। वैल्यू क्या है? एक तरह से जो मैंने एज्यूम किया था, मैं क्वालिटी जो मैं एज्यूम कर रहा हूं वही एक तरह से प्राइसिंग है। So this approach is used where external factors such as recession or increased competition force companies to provide value products and services to retain the sales. Value pricing में अगर कोई mishappening अगर हो रही है या कोई recession है उस टाइम पर अगर हम दे रहे हैं तो वो वैल्यू प्राइसिंग है। इसके अंदर हम सेगमेंटेशन करते हैं सर्विस वर्जन से और क्लाइंट कैटेगरी में, लाइक इस पर्टिकुलर सर्विस डिफरेंट सर्विसेज है, इन सर्विसेज के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्लाइंट की कैटेगरीज बना देते हैं कि मेरे कैसे कैसे क्लाइंट्स है, उसके अकॉर्डिंगली मैं प्राइसिंग दे रही हूँ। नेक्स्ट, प्राइस बंडलिंग। अब प्राइस बंडलिंग is what value is what I get for what I give. वैल्यू मैं क्या दे रहा हूँ और क्या मैं ले रहा हूँ उस पर डिपेंड करती है। सो फर्स्ट इज द प्राइस बंडलिंग। प्राइस बंडलिंग में 3 चीजें हैं, मिक्स्ड बंडलिंग, मिक्स्ड लीडर बंडलिंग, मिक्स्ड जॉइंट बंडलिंग। तो मिक्स्ड बंडलिंग तो हमने क्या किया कि प्राइसेस का एक सर्विसेज या प्रोडक्ट्स का एक पूरा बंडल बना दिया है, बंडल बना दिया है और उसके अंदर हमने अपने कस्टमर्स को ऑफर किया है। इसके अंदर डिफरेंट सर्विसेज है। लाइक अगर आप स्पा में जाते हो या सलून्स में जाते हो तो पूरा प्राइस बंडल, लाइक आपकी स्पा, इस स्पा का ये आपको ये बॉडी मसाज देंगे तो समथिंग लाइक दिस प्राइसिंग इज दिस। तो ये डिफरेंट सर्विसेज को उन्होंने एक मिक्स बंडल कर दिया है। मिक्स्ड लीडर बंडलिंग कि उन्होंने 2 जो लीडिंग उनकी जो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स है उनका एक बंडल बना दिया है। आप चाहो तो उन दोनों लीडर्स में से आप किसी भी एक को ले भी सकते हो और दूसरे को आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। मिक्स्ड जॉइंट बंडलिंग, दोनों को एक जॉइंट बना दिया है कि 2 लीडर्स हैं या 2 प्रोडक्ट सर्विसेज हैं जो कि बहुत डिमांडिंग में, हमने इन दोनों का एक बंडल बना दिया है, उसके बेसिस पे हम अपनी प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग कि अब हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी प्राइसिंग को। First, captive pricing. Captive pricing, it is used when pricing of the main, or we can say the core product is very low, but the value of the supplementing product, which is necessary for the working of the main product, is very high. For an example, like razor and razor blades, printer and the cartridges. ठीक है, रेजर ले लेते हैं पर रेजर की ब्लेड्स की कॉस्ट ज्यादा आती है, प्रिंटर उसकी कार्टेज की कॉस्ट ज्यादा आती है, ठीक है। That is the captive pricing. Now next is 2-part pricing. 2-part pricing, that means कि हम 2 पार्ट में ले रहे हैं pricing, in which customers are charged both an entry fee as well as the usage fee. जहाँ पे एक fixed price होती है, per unit price होती है। Like
अगर आप किसी भी पब वगैरह में जाते हो तो आपकी एक एंट्री फीस होगी, एंट्री फीस के अलावा फिर वहां पर आप जो भी चीज एंजॉय कर रहे हो, कुछ स्नैक्स ले रहे हो, तो वो डिपेंड करता है हमारे कस्टमर्स की प्राइसिंग पर। सिमिलरली अगर हम एक बात करें टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में भी फिक्स्ड प्राइस है, लाइक आपका मंथली रेंटल फिक्स है, फिर आपके यूसेज रेट पे डिपेंड करता है कि आपकी यूसेज कितनी जाएगी। लाइक फोन सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक वोडाफोन और एयरटेल, दे चार्जेस देयर फिक्स्ड मंथली चार्ज and per unit charge for the use of the phone. So this is what the two part pricing. Loss leader pricing हमारी क्या कहलाएगी? It is a strategy that involves selecting one or more retail products to be sold below the cost at the loss to the retailer in order to get the customers into our door. That means हमने pricing क्या कर दी है, हम loss bear कर रहे हैं बट हम चाहते हैं कस्टमर्स आए, हमारा प्रोडक्ट कुछ तो बिके, इस चक्कर में हम ऐसा कर लेते हैं, लाइक रिटेल्स में ऐसा होता है। और रिजल्ट बेस्ड प्राइसिंग, कंटिजेंसी प्राइसिंग, जिसके अंदर प्राइसिंग जो है वो डिसाइड हम इजीली नहीं कर पाते, लाइक लॉयर्स की, ये कंटिजेंसी प्राइस है। रिजल्ट बेस्ड प्राइसिंग है, जिस लॉयर का रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहता है उसकी प्राइसिंग उतनी ही ज्यादा होती है। द फोर एक्सप्रेशंस of value can be captured in overall definition consistent with the concept of utility in economics. Perceived value is the customer's overall assessment of the utility of a service based on perception of what is received and what is given. हम कैसे perceive करते हैं कि हमें क्या मिला है और हम क्या पे कर रहे हैं। So conditions for market segmentation pricing: segments must value the service differently. Segments must be identifiable and profitable. लोअर पेइंग सेगमेंट्स कैन नॉट सेल टू हायर पेइंग सेगमेंट्स, हमें लोअर सेगमेंट्स का और हायर पेइंग सेगमेंट्स तो अलग अलग कर देने चाहिए। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मस्ट नॉट बी हायर देन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, जो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो कॉस्ट और जो भी हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमने कॉस्ट ज्यादा ले रही है और हमने रेवेन्यू कमा रहा है हमारे पास, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। मस्ट नॉट बी कंफ्यूजिंग टू करेंट और फ्यूचर कस्टमर्स, हमारे कस्टमर्स भी इसको लेके कंफ्यूज ना हो। सो टाइम ऑफ यूसेज, टाइम ऑफ रिजर्वेशन, टाइम ऑफ परचेज, लोकेशन ऑफ कंजम्पशन और टारगेट मार्केट, हमें ये सब चीजें कंसिडर करनी है। नाउ नेक्स्ट, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में, डिमांड बेस्ड और कॉम्पिटिशन बेस्ड। अगर हम कॉस्ट बेस्ड की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट डिफिकल्ट टू ट्रेस, लेबर मोर डिफिकल्ट टू प्राइस देन मटेरियल। ठीक है, हम लेबर की कॉस्ट तो हम इजीली डिफाइन नहीं कर सकते, ये उसकी डिपेंड करता है उसके वर्किंग के जो स्टाइल है उस पर डिपेंड करेगा, जबकि कॉस्ट जो है उसे भी ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉस्ट में नॉट इक्वल वैल्यू, अगर कॉस्ट जितनी पे कर रहे हैं वैल्यू नहीं मिल रही है तो भी हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कॉस्ट को। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग में क्या प्रॉब्लम है, मॉनेटरी प्राइस मस्ट बी एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कॉस्ट, जो भी मेरी मॉनेटरी कॉस्ट है वो मेरी नॉन मॉनेटरी कॉस्ट को भी एडजस्ट करे, लाइक जो मेरे कस्टमर्स की जो कॉस्ट लग रही है उन सबको सर्चिंग करने मेरे टाइम एफर्ट्स लग रहा है वो सब चीजें एडजस्ट होनी चाहिए। लाइक मैंने इतना पे कर दिया है, डॉक्टर की फीस इतनी दे दी बट मेरा वेटिंग टाइम अगर 2 आवर्स का है तो मैं बोलूंगी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। लाइक मैंने उसको पे किया 600 रुपीज पर विजिट बट ऑल्दो आई हैव टू वेट फॉर 1 to 2 आवर्स, तो फिर वो चीज जस्टिफाई नहीं है होगी। Information on service cost less available to customers, hence price may not be the central factor. Information जो है वो customers को कम available है cost के regarding, इस वजह से हम इसको justify नहीं कर सकते। Whereas in the competition based pricing, small firms may charge too little to a viable. कभी कभी जो small firms होती हैं वो भी competition की ओर में कुछ ज्यादा ही charge करने लगती हैं। हेट्रोजीनिटी होती है क्योंकि सर्विसेज में तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं, प्राइसेस में नॉट रिफ्लेक्ट द कस्टमर वैल्यू और इसी के प्राइसेस से हम लोग कस्टमर वैल्यू भी रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो विद दिस आवर प्राइसिंग टॉपिक इज फिनिश्ड नाउ। आई होप you understand the topic well. Yes, ma'am.